سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی، جنہوں نے کل پیپلز پارٹی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، آج پوری اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ الیکشن اصلاحات کے معاملے پر اپوزیشن سے مذاکرات اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے پر تیار ہیں۔ وزیر اعظم نے بابر اعوان اور علی محمد خان کو اپوزیشن سے رابطے کا ٹاسک سونپ دیا۔ کرپشن 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 ہم نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ احتساب اس ملک کے اندر ہو کے رہے گا اور طاقتور کا ہوگا۔ اقتدار میں آیا اس لیے تھا کہ میں ان چوروں اور لٹیروں کا احتساب کرنا تھا۔ کرپشن کے الزامات سے کوآپریشن کے بیانات تک تبدیلی ایکسپریس پٹری بدلنے لگی۔ کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا۔ وزیر اعظم جس اپوزیشن پر گرجا برسا کرتے تھے، اب اسی اپوزیشن کے ساتھ مختلف معاملات پر مذاکرات کی ہدایات دے رہے ہیں۔ اپوزیشن کے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے آج جو ہدایت کی ہے، جو ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کو اور علی محمد خان صاحب اور جو ہمارے پارلیمان کو لوگ جو دیکھتے ہیں، کہ آپ ای وی ایم اور آئی ووٹنگ ان دو امور کو بنیادی معاملے کے طور کے اوپر اپوزیشن سے ڈسکس کریں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ اب تک اپوزیشن سے جو بات چیت ہوئی وہ خوش آئند ہے، خواہش ہے معاملات اسی انداز میں آگے بڑھیں۔ ہم ایک طرف تو جوائنٹ سیشن کو کال کریں گے اور اپنا ایجنڈا جو ہے وہ جوائنٹ سیشن میں لے جانے کے لیے بھی جو ہے وہ ہم پوری طرح تیار ہیں، اور اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ اپوزیشن سے مفاہمت کی جھلک وزیر اعظم کے دورہ کراچی میں بھی نظر آئی، جس پیپلز پارٹی کو عمران خان مسلسل کرپٹ قرار دیتے تھے، ملکی مفاد میں اسی کے ساتھ چلنے کو لازمی بتانے لگے ہیں۔ ملک کی خاطر، سندھ کی خاطر ہمیں اس کو پوری طرح کراچی میں اکٹھے مل کے چلنا پڑے گا۔ کہ 3 سال میں کوئی اور تبدیلی آئی ہو یا نہ آئی ہو، لگتا ہے احتساب کے بیانیے میں تبدیلی ضرور آ چکی ہے۔ ان کا احتساب جب تک نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر نے لندن کیس کا کچا چٹھا کھول دیا۔ کہتے ہیں کون سی بریت اور کیسا فیصلہ؟ جب لندن میں شہباز شریف پر کوئی مقدمہ ہی نہیں کیا تو سرخرو کیسے ہو گئے؟ ورچوئل نیوز کانفرنس میں کئی سوالات اٹھا دیے۔ کہا معاملہ سلیمان شہباز اور ذوالفقار کے اکاؤنٹس کے منجمد ہونے کا تھا۔ پورے فیصلے میں شہباز شریف کا کہیں نام بھی نہیں۔ ان کے خلاف منی لانڈرنگ مقدمے کا فیصلہ تو پاکستان کی عدالت کرے گی۔ ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا رپورٹنگ کا کہ جیسے شہباز شریف صاحب کے اوپر برطانیہ میں منی لانڈرنگ کا کیس تھا اور اس کے بعد وہ اس میں بری بھی ہو گئے۔ کوئی خوش فہمی کا شکار نہ ہو، کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر نے خبردار کر دیا۔ اسلام آباد میں ورچوئل نیوز کانفرنس میں کہا جب شہباز شریف پر لندن میں کوئی مقدمہ ہی نہیں کیا تو پھر کیسا فیصلہ اور کون سی بریت؟ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ شہباز شریف صاحب کے اوپر پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 4 لاہور میں داخل کیا ہے۔ وہ مقدمہ ابھی یہاں چل رہا ہے اور اس مقدمے میں ہی فیصلہ ہونا ہے منی لانڈرنگ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب، ان کے بیٹے حمزہ شہباز اور چونکہ سلمان مفرور ہیں، وہ دوسرا مقدمہ 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا FIA کے سامنے ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ شہزاد اکبر نے میڈیا کو بتایا برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے ستمبر 2019 میں کچھ فنڈز کو مشکوک قرار دے کر تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ ذوالفقار اور سلیمان شہباز کے اکاؤنٹس پر فریزنگ آرڈر حاصل کر رکھا تھا۔ فیصلہ 2 اکاؤنٹس کو منجمد کرنے سے متعلق تھا، بریت کا کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ شہزاد اکبر نے برطانوی مجسٹریٹ کا ریلیز آرڈر بھی شیئر کر دیا۔ بڑا سمپل سا ہے، 2 لائنرز کا آرڈر ہے۔ دی AFOs are hereby set aside، یعنی کہ AFOs کو ختم کیا جاتا ہے۔ دیر بی نو آرڈر ایز ٹو کاسٹ، کہ کسی کو بھی نہ کوئی جرمانہ ہے نہ کسی کی دوسری سائڈ کی آپ نے فیس دینی ہے۔ اس پورے آرڈر کے اندر شہباز شریف کا نام نہیں ہے، شہباز شریف کو کسی چیز میں ایکوٹ نہیں کیا گیا ہے،
शहबाज शरीफ सो मच सो लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्ज भी नहीं हुए थे। मुशीर दाखिला और एहतिसाब का कहना है रिलीज आर्डर का मतलब ये नहीं कि फंड्स जायज जराए से वसूल हुए थे। सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की अदालत से मफरूर हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा पाकिस्तान में चल रहा है और फैसला भी यही होगा। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के फैसले के बाद एहतसाब का बयानिया दफन हो गया। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नैब और ईस्ट रिकवरी यूनिट के बैरूनी दौरों पर कितने पैसे खर्च हुए तहकीकात की जाएं। साबिक वजीर आजम ने यह भी कहा कि आर्मी चीफ की तौसी में खुद को गुनाहगार महसूस नहीं करता। इमरान शफकत की रिपोर्ट देखिए। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में नून लीग के रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह ने हुकूमती एहतसाब के बयानिए को आड़े हाथों लिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वज़रा के झूठ बेनकाब हो गए हैं। इनको अपने ही पुराने झूठ भूल जाते हैं और नए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। वही आदमी जो 1.5 साल कहता रहा जी मैं पीछा कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज वो कह रहा है जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कोई शहादत ना किसी जुर्म की है ना किसी मनी लॉन्ड्रिंग की है। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा कि एनसीए की रिपोर्ट के बाद एहतसाब का बयानिया जमीन बोश हो गया। नैब के अफसरान ने जाके उन्हें तमाम अपनी इन्वेस्टिगेशन से आगाह किया और उनको शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ खुद साख्ता सबूत दे के कोशिश की कि उनके जहनों पे असर अंदाज हों, उनकी इन्वेस्टिगेशन पे असर अंदाज हों और किसी तरह कोई वहां से फैसला हासिल करें। लीगी रहनुमाओं ने कहा कि तमाम तर साजिशों के बावजूद शरीफ खानदान सुरखरू हो गया है। शहजाद अकबर, चेयरमैन नैब और झूठे इल्जामात लगाने वाले तमाम लोग माफी मांगे। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ इमरान शफकत, समा, लाहौर। आगे देखिए तर्जुमान की तू मैं। ये मामला भी बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि अहम तरीन मामलात पर भी नून लीग में लगता है बयानिए की जंग छिड़ी हुई है। जितने मुंह उतनी बातें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए थी या फिर नहीं? कौन कौन क्या क्या कहता रहा, आइए देखते हैं। किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। क्या आप खुद को गुनाहगार महसूस करते हैं? कैसे इतना बता? मैं बिल्कुल अपने आप को गुनाहगार महसूस नहीं करता। मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था। मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। मैं बिल्कुल अपने आप को गुनाहगार महसूस नहीं करता। मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था। सभी से किसी न किसी जगह पे या किसी न किसी का सरे राह कोई बात हो जाती है। मरियम नवाज शरीफ जो है वो उन्होंने पार्टी के बयानिए को जो है वो आगे बढ़ाया है। सहाफियों के सामने हुकूमत पर बरसने वाली मरियम औरंगजेब आज सहाफियों से उलझ गईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मीडिया अरकान से खूब गर्मा गर्मी हुई। नोक झोंक बढ़ी तो लीगी तर्जुमान ने कैमरा बंद कराने का कह दिया। मामला क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। मरियम औरंगजेब कभी झूमती नजर आती हैं तो कभी झूलती दिखाई देती हैं। कभी खुशी में आंखें छलक जाती हैं, कभी इंतहा का गुस्सा। अब ये इन नीच और छोटी और घटिया हरकतों पर उतर आए। जो घटियापन होता है इतने नीच है, ये है इनका घटियापन। मुखालिफिन पर बरसने वाली मरियम औरंगजेब आज सहाफियों से उलझ गईं। मामला कुछ यूं था कि मरियम औरंगजेब चाहती थीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सेक्रेटेरिएट हॉल में हो। सहाफी चाहते थे कि जहां इतनी देर इंतजार किया वहीं बात की जाए। बस इसी दौरान कुछ सहाफियों ने इल्जाम लगा दिया कि आपने हॉल के अंदर आने के लिए फोन कराया है। मरियम औरंगजेब ने गुस्सा तो किया मगर हाथ भी जोड़ दिए।
कहीं ये सब रिकॉर्ड तो नहीं हो गया, ये फिक्र भी सताई। आप ये कैमरा बंद करें, आप ये कैमरा बंद करें। आखिरकार सहाफियों ने मरियम की बात मानी और प्रेस कॉन्फ्रेंस सेक्रेटेरिएट के अंदर हुई। इस गुस्से के साथ डर ये भी है कि कहीं समा का माइक खुला ना हो, हमारा मजाक ना बन जाए। लीगी रहनुमाओं की ये खुशगपियां भी ऑन रिकॉर्ड आ गई, मगर ये तल्ख सच्चाई अपनी जगह रह गई कि हमारे सियासतदान ऑफ रिकॉर्ड जो होते हैं वो ऑन रिकॉर्ड नजर नहीं आते। आपका माइक बंद रखें प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, ये बाद में खुशगपियां चलाती हैं। आप खुशगपियां करें ना। कहीं समा सच न सुन ले, कहीं हमारा मजाक न बन जाए। लीगी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले गुफ्तगू में समा के माइक से मोहतात नजर आए। समा का माइक बंद रखें प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, ये बाद में खुशगपियां चलाती हैं। आप खुशगपियां करें ना। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, शेख साहब भी खुले माइक की इज्जत में आ चुके हैं। कल मेरी 4 मीटिंग हुई है जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कोई इंसाफ है यार। मैंने मरवान हुए लोगों को कल उन्होंने मैंने कहा जी मरवान हुए लोगों को कल उन्होंने मैंने कहा जी। बात नून लीग और शेख साहब तक भी महदूद नहीं, ये माइक MQM रहनुमाओं की सरगोशियां भी पकड़ चुका है, जिसके बाद वसीम अख्तर की तकरीर का जोश ठंडा पड़ गया था। बहुत केयरफुल है। मैं कराची का मेयर हूँ, उस पर रोक रहा हूँ तो कराची के मेयर के नाते इसी से कुछ मिलता जुलता वाकया पीपल्स पार्टी रहनुमा शादिया मरी के साथ भी पेश आया था। अगर आप 15-20 हजार लोगों को 5-5 हजार या 10-10 हजार रुपए देते हो, उनको ATM कार्ड देते हो, उससे बेहतर कोई वो नहीं। ATM कार्ड अगर कर सकते हो, इससे देखो सब लोग भूल जाएंगे, लोग पैसे लेने आएंगे, गैंग का सारा इशू खत्म हो जाएगा। अब ऐसे माइक का क्या किया जा सकता है जो ऑफ हो या ऑन, लबो लहजा नहीं बदलता, खुशगपियां नहीं करता, पूरी संजीदगी से सच सामने ले आता है। माफ कर दे भाई, नहीं मुस्लिम लीग नून वाले एडी गुनहगार नहीं हुई, मेहरबानी। शहरों में महंगाई ज्यादा और देहातों में कम, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की निराली इत्तला। मगर स्टेट बैंक के मुताबिक देही इलाकों में महंगाई शहरी इलाकों की निस्बत तेजी से बढ़ी। रवां साल शहर में महंगाई 12.4%, जबकि देही इलाकों में 13.1% रिकॉर्ड की गई। हमारी जो देहात की इकॉनमी है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन जहाँ पे शहरों में जहाँ इम्पोर्टेड चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे यकीनन जो महंगाई है वो ज़्यादा है। वफाकी वजीर इत्तलात की इत्तला गलत साबित हुई। फवाद चौधरी के दावे के बरक्स 3 साल में शहरों के मुकाबले में देही इलाकों में महंगाई ज्यादा बढ़ी है। स्टेट बैंक और वफाकी इदारा शुमारियात के एदाद शुमार ने भांडा फोड़ दिया। गुज़िश्ता माह शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 8.3%, जबकि देही इलाकों में 8.4% रिकॉर्ड की गई। पिछले 2 साल के एदाद शुमार का जायजा लें तो रवां साल शहरी इलाकों में महंगाई 12.4%, जबकि देही इलाकों में 13.1% रही। जबकि पिछले साल शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 10.2% और देही इलाकों में 11.6% रिकॉर्ड की गई थी। यही वजह है कि मुल्क भर के शहरी दुहाइयां देते नजर आते हैं। गाँव के जो दुकानदार हैं वो 2-4-5 रुपए ज्यादा ही लगाते हैं शहर के निस्बत। वो कहते हैं कि हम दूर से सामान लेके आते हैं। इसके नौकर इसके लिए सौदा मोदा लेकर आते हैं, बाहर निकले, शहर में निकले या गांव में कहीं पे भी जाए, सब जगह एक ही तरह की महंगाई है। लोगों का कहना था कि शहर हो या देहात, हुकूमत महंगाई के अजदे को काबू में करने के लिए फौरी इकदामात करे। हकीकत भी यही है, महंगाई का हेलीकॉप्टर ऊंची परवाज पर है। हुकूमती कोशिशें, इनके दावे, सब के बावजूद चीनी की कीमत में कमी नहीं आ सकी। शहरी 105 से 110 रुपए किलो में चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। LPG की कीमत में भी फी किलो 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया। मोहम्मद लुकमान लाहौर से रिपोर्ट करेंगे। चीनी की कीमत काबू से बाहर, हुकूमत 89 रुपए 75 पैसे पर फिरोख्त मुमकिन न बना सकी। एक्समिल रेट 100 रुपए से जायद, जबकि परचून कीमत 110 रुपए तक है। उसी गन्ने के साथ अगर वो 250-250-300 रुपए मन गन्ना था, वो चीनी जो 70 रुपए बिक रही थी, वही चीनी छलांग लगाकर 105 रुपए किलो तक चले गई। कहीं नजर नहीं आ रही, यहाँ पूरी मार्केट फिर रही है, वहाँ मतलब किसी किस्म का कोई ऐसा हिसाब ही नहीं है कि आपको 90 रुपए चीनी मिली है। इस वक्त जो रेट चल रहा है वो एटलीस्ट
110 रुपए 20 रुपए, यानी कि यूं कह लें कि जिसका जहां पे जी जा रहा है वो उतने में सेल कर रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत ने 85 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाई है, मगर चीनी का मयार आवाम को पसंद नहीं। वहाँ पे चलो 110 रुपए, चीनी तो मोटी है, यहाँ पे बिल्कुल चूरा चीनी है, ना चाय बनती है ना कुछ बनती है, ज़्यादा डालते जाओ, फर्क ही कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा फर्क है, बाहर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये बिल्कुल पाउडर है। उधर LPG 20 रुपए के इजाफे के साथ 195 रुपए फी किलो हो गई है। घरेलू सिलेंडर 240 रुपए इजाफे के साथ 2300 रुपए का, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 8853 रुपए का हो गया है। कैमरामैन जवाद याह्या के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। और अब ऐसे में डॉलर की भी ऊंची उड़ान। तारीख में पहली बार इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 170 रुपए का हो गया। स्टॉक डीलर के मुताबिक दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक में डॉलर की कीमत पहली बार इस सतह पर पहुंची है। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज अमरीकी डॉलर 169 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ था। और अब एक अहम ऐलान। रुयत हिलाल कमेटी के अलावा किसी ने भी चांद का ऐलान किया तो जुर्माना भरेगा। वफाकी काबीना का बड़ी बैठक में बड़ा फैसला। सोशल मीडिया के खिलाफ शिकंजा सख्त करने और वीज़ा पॉलिसी को 50 के बजाय 191 ममालिक तक तौसी देने की समेत अहम फैसलों पर गौर किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। वफाकी काबीना की बड़ी बैठक में बड़े फैसले, चांद देखने और ईदैन के ऐलान से मुतालिक भी बड़ी पेशरफ। जो प्राइवेट अनाउंसमेंट्स होती हैं चांद की, उनको रुयत हिलाल कमेटी ने बैन कर दिया है और अब सरकार की तरफ से ईद की अनाउंसमेंट्स होंगी उसको ही हतमी समझा जाएगा। फाइन होगा अगर कोई जो है वो इस रुगर्दानी होती है रियासत की उससे। मुल्क में कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर में हायल रुकावटों का जायजा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील। सियाहत और मईशत के फरोग के लिए वीजा पॉलिसी में भी बड़ी तब्दीली। कैबिनेट ने वीज़ा एप्लीकेशंस का सिस्टम है जिसके तहत हम ई वीज़ाज देते हैं, उसको एक्सपेंड किया है और अब वो 191 मुल्कों को अवेलेबल है। पहले ये वीज़ा फैसिलिटी सिर्फ 50 मुल्कों के अवेलेबल थी। काबीना ने 34 दवाओं की कीमतें फिक्स कर दी। टेलीफोन इंडस्ट्री NRTC को मुंतकिल करने की मंजूरी। सोशल मीडिया के खिलाफ शिकंजा सख्त, नए रूल्स की मंजूरी दे दी गई। सोशल मीडिया कंपनियां पाकिस्तान में दफातर खोलने की पाबंद करार। अमला तैनात करके शिकायत का अजाला भी करना होगा। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। आला अदालत के बड़े फैसले की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर केस में नजरसानी दरखास्तें मुस्तरद कर दी। तफसीली फैसले में कहा गया है इजाफी लीज का कोई कानूनी जवाज पेश नहीं किया जा सकता। इमारत का कुछ हिस्सा गैर कानूनी ज़मीन पर तामीर किया गया, ऐसे में अलॉटीज़ को हकीकी मालिकान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इरफानुल हक रिपोर्ट कर रहे हैं। नजरसानी दरख्वास्त पर भी फैसला आ गया। नस्ला टावर गिराना ही होगा। टावर का कुछ हिस्सा गैर कानूनी जमीन पर तामीर किया गया। लॉटीज या मालकान को हकीकी मालकान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अदालती हुक्म में अलॉटीज के मुफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची की शारा फैसल पर वाक़े नस्ला टावर को गिराने के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें मुस्तरद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने तफसीली फैसले में लिखा, मुतअद्दिद सवालात पर भी 780 गज से जायद लीज दस्तावेजात पेश नहीं की गयी। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर के वकील से मुतअद्दिद सवालात किए मगर इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिल सका। इजाफी लीज का कोई कानूनी जवाज नहीं पेश किया जा सका। ओरिजिनल लीज में किसी किस्म की कोई तरमीम नहीं हुई। बार बार सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का जारी करदा लेटर दिखाया गया, लेकिन सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के पास लीज जारी करने का ही इख्तियार नहीं था। चेयरमैन आबाद आरिफ जीवा कहते हैं, मुल्क भर में 70 से 90% सोसाइटीज लीज ही नहीं। अप्रूवल के बाद नस्ला टावर में अलॉटमेंट दी गई। बिल्डर ने जो है वो जब सेल किया इसको अलॉटीज को, तो अलॉटीज को एक एक चीज दिखाई कि जी ये हमारी अप्रूवल्स हैं। हाँ, अगर अथॉरिटीज ने अप्रूवल गलत दी तो बिल्डर गलत है, बिल्डर गलत है तो फिर अथॉरिटीज भी गलत है। नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद कानूनी माहिरीन की ये बात दुरुस्त साबित हो गई है कि नस्ला टावर के अलॉटीज अपनी तवज्जो बिल्डर से रकम की वापसी पर मरकूज रखें। इरफानुल हक, समा, कराची। सिंध की तबाहाली का एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जिक्र। अदालत ने चेयरमैन NHA की सरजनिश करते हुए रिमार्क्स दिए कि सिंध में तो मोटरवे बस नाम की है। रहीम यार खान मंदिर तोड़फोड़ अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान सरकारी नौकरियों में अकलियतों के कोटे की 30,000 असामियां खाली होने का इंकशाफ हुआ। अदालत ने तशवीश जाहिर करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए।
सुप्रीम कोर्ट में रहीम यार खान मंदिर तोड़ फोड़ खुद नोटिस केस की समाअत। सरकारी नौकरियों में अकलियतों के कोटे की 30,000 असामियां खाली हैं। चेयरमैन अकलियती कमीशन शुएब सडल ने दौरान समाअत बड़ा इंकशाफ कर दिया। अदालत का इतनी बड़ी तादाद में असामियां खाली होने पर इजहार तशवीश, मुतलका हुकाम से रिपोर्ट मांग ली। दौरान समाअत चेयरमैन NHA की सरजनिश, चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या आपने मोटरवेज और हाईवेज का हाल देखा है? चित्राल गिलगित हाईवे कागजों में 3 बार बन चुकी है। सिंध में तो मोटरवे बस नाम की है। मुल्तान सक्खर मोटरवे पर कोई रेस्ट एरियाज मौजूद नहीं। चेयरमैन NHA बोले हम इकदाम कर रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस बरम हो गए। कहा क्या इकदाम कर रहे हैं? आपकी ड्यूटी लगा दें कि रोजाना मुल्तान सक्खर मोटरवे पर सफर करें, फिर आपको रेस्ट रूम्स की हाजत और आम आदमी की तकलीफ का एहसास होगा। अगली तारीख पर तैयारी करके आए, तमाम सवालों के जवाब देना होंगे। अदालत ने सादगाबाद इंटरचेंज की तामीर के मामले पर चेयरमैन NHA और सेक्रेटरी प्लानिंग को जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि भोंग में पानी के नलके के बायस लोगों में लड़ाई के वाक़े की इत्तला मिली। ऐसा क्या हो गया है कि लोग एक घूंट पानी पर लड़ने लगे हैं? मुआशरे में इखलाकी इस्लाहत लाने की जरूरत है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को कर्क मंदिर की तामीर से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। अभी खबर ये कि कराची के इलाके लियारी के मकीनों ने पानी और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ माड़ीपुर रोड पर एहतजाज किया, जिसके बायस IA चंद्रीगढ़ रोड, माड़ीपुर रोड और अतराफ में कई घंटों से ट्रैफिक जाम है। बात करेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम IA चंडीगढ़ रोड पर मौजूद हैं और IA चंडीगढ़ रोड और माड़ीपुर रोड पर इस वक्त शदीद ट्रैफिक जैम है। लोग घंटों से इस ट्रैफिक जैम में जो है वो फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर लगी हुई हैं। गाड़ियाँ हैं और दीगर हैवी व्हीकल्स भी हैं। आप ये देख सकते हैं, लोग परेशान जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। अपने दफातर से वो निकले थे शाम के औकात में। तकरीबन 5 से 6 बजे से ये ट्रैफिक जैम होना शुरू हुआ था IA चंडीगढ़ रोड पर और माड़ीपुर रोड पर। वो अब तक जो है वो जारी है। माड़ीपुर रोड पर एक एहतजाज भी पानी और बिजली का जो है वो किया जा रहा था। पानी और बिजली की अदम दस्याबी पर इलाका मकीन लियारी के कुछ निकल कर आए थे, एहतजाज किया था। उससे जो है वो ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि फ़्लो बनाए और उसके बाद माड़ीपुर रोड और IA चंडीगढ़ रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम जो है वो दिखाई दे रहा है। लोग भी काफ़ी परेशान हैं। लोगों से बात भी करते हैं। कब से खड़े हुए हैं भाई? यार हम 2 घंटे से खड़े हुए हैं। ये लेडीज़ को ली मार्केट ले जा रहे हैं, पूरे शहर में घुमा रहे हैं, जहाँ से जा रहे हैं वही रास्ता बंद है। अच्छा, कितना ट्रैफिक कितना जाम है? बहुत ज़्यादा, 2 घंटे हो गए बैठे हुए हैं। सवारी उतर के चले गई। लोग शदीद अजियत का शिकार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लोग दफातर से अपने घरों जाने के लिए जो है वो निकले थे, घरों की जानिब जो है वो जाने के लिए निकले थे, लेकिन अब वो इस ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं और परेशान हैं। जी ठीक, अहमद आगाह करने के लिए शुक्रिया। रस्सी जल गई, बल ना गया, मामला जानिए थोड़ी देर बाद। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में लड़की और लड़के पर तशद्दुद केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मकामी अदालत ने उस्मान मिर्जा समेत 7 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। हथकड़ियां लगने के बावजूद मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा की अकड़ खत्म न हुई। आदिल तनोली की रिपोर्ट देखिए। लड़की और लड़के पर तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग का केस। इस्लामाबाद में पेश आने वाले वाक़े के मरकजी मुल्ज़िम उस्मान मिर्जा और इसके 6 साथियों का अब बाकायदा ट्रायल चलेगा। एडिशनल सेशन जज ने तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। वफाकी पुलिस ने उस्मान मिर्जा, हाफिज अताउर रहमान, इदारस कयूम भट्ट, रेहान और दीगर को एडिशनल सेशन जज अता रबानी के रूबरू पेश किया। मुल्जिमान में उमर बिलाल मरवत, मुहिब बंगश और फरहान शाहीन भी शामिल। समाअत के दौरान मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करके चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाहान को नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर शहादतें तलब कर ली। केस का ट्रायल 12 अक्टूबर से शुरू होगा। फर्द जुर्म आयद होने के बावजूद उस्मान मिर्जा की अकड़ न गई। पेशी के बाद तंजिया जुमले बोलता रहा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस के 3 शरीक मुल्जिमान इदारस कयूम भट्ट, हाफिज अताउर रहमान, फरहान शाहीन की जमानतें खारिज कर दी। केस का ट्रायल 2 माह में मुकम्मल करने का हुक्म भी दे दिया। ईरानी हुदूद से दहशतगर्दों ने FC चौकी पर फायरिंग की है। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान खान, ISPR ने क्या बताया इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ईरानी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। पाक ईरान बॉर्डर पर दहशतगर्दों ने ईरानी इलाके से FC की सरहदी चौकी पर फायरिंग की और ISPR के मुताबिक सड़क पार से फायरिंग का वाक़या चकाब जो कि बलूचिस्तान बॉर्डर के पर वाक़ है, वहाँ पर ये पेश आया और दहशतगर्दों की फायरिंग से सिपाही मकबूल शाह जो है अब वो जाम शहादत नोश कर गए और जबकि FC के एक और एहलकार जो है वो जख्मी हैं। ये बताया गया है कि मुतलका ईरानी हुकाम को इस वाक़े से आगाह कर दिया गया और पाकिस्तान की जानिब से जो अपना एहतजाज है वो भी रिकॉर्ड करवाया गया और वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि पाकिस्तान किसी के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल नहीं होता और ना ही
ایران کو بھی اب اس معاملے میں جو ہے تحقیقات کرنی چاہیے. تو ایک واضح جو احتجاج ہے اور واقعہ جو ہے اس سے آگاہ کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا عثمان. تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں. عمر شریف علاج کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے. عمر شریف اور اہل خانہ کو لے جانے والی ایئر ایمبولینس جرمنی میں مختصر قیام کے بعد واشنگٹن پہنچے گی. کراچی کے نجی اسپتال سے عمر شریف کراچی ایئرپورٹ پہنچے تو سول ایویشن اتھارٹی کے حکام نے عمر شریف کو پھول پیش کیے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. عمر شریف کے اہل خانہ نے تمام پاکستانیوں سے عمر شریف کی صحت یابی کی دعا کرنے کی درخواست کی. سب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ان کا بیٹا ہونے کے ناطے کہ پلیز ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک خیر خیریت سے ان کو واشنگٹن لے کے جائے. آپ سب لوگوں نے عمر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ خیر خیریت سے عمر وہاں اپنے ہاسپٹل پہنچ جائیں. عمر شریف اور گھر والوں کو لے جانے والی ایئر ایمبولینس جرمنی میں مختصر قیام کے بعد تقریباً 16 گھنٹے میں واشنگٹن پہنچے گی. امریکی دارالحکومت کے جارج واشنگٹن یونیورسٹی اسپتال میں ان کے پروسیجر کی تمام تیاریاں مکمل ہیں. یہاں پہ ہماری ایک ٹیم ہے جو یہ پروسیجر پرفارم کرتی ہے. اس میں 4 فزیشین ہیں، میں ہوں، ایک اور کارڈیالوجسٹ، ایک کارڈیو سرجن اور ایک ایکوکارڈیوگرافر ہے. یہ ایک بہت نیا پروسیجر ہے اور بہت ہی ٹیکنیکلی ٹف پروسیجر ہے. پاکستان کی شان اور مزاح کے شہنشاہ عمر شریف نے 3 ہفتے قبل حالت بگڑنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان سے امریکہ منتقلی میں مدد دینے کی اپیل کی تھی. بلیٹن کے آخر میں بتائیں آل راؤنڈر محمد حفیظ ڈینگی کا شکار ہو گئے. پلیٹلیٹس کی مقدار اب بہتر ہو رہی ہے. محمد حفیظ طبیعت خرابی کی وجہ سے نیشنل T20 کپ ادھورا چھوڑ گئے تھے. تمام ضروری ٹیسٹ کے بعد ڈینگی کی تشخیص ہوئی. محمد حفیظ کی طبیعت اب سنبھل رہی ہے، وہ ریکور کر رہے ہیں. 2 روز پہلے پلیٹلیٹس کم ہوئے لیکن اب بہتری آ رہی ہے. ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز. ہمارے ساتھ رہیے.